लंदन में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासर इलाकों में इमदादी कामों बारे जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने लंदन से बजरिया वीडियो लिंक बहाली के कामों का जायजा लिया। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर हुकाम को ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी बरादरी और पाकिस्तानी इदारों की कोशिशों से जल्द मुश्किल से निकल आएंगे। आलमी लीडर्स ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तान की भरपूर मदद की जाएगी। एंटोनियो गुतेरेस ने यकीन दिलाया सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस भी कराई जाएगी। आलमी लीडर्स ने पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के हालिया इजलास के दौरान उनकी एंटोनियो गुतेरेस समेत दुनिया भर की अहम लीडरशिप से मुलाकातें हुई, जिसमें उन्होंने सैलाब से होने वाली तबाही और हुकूमत की तरफ से इमदादी कार्रवाइयों और बहाली की कोशिशों के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से अपनी टेलीफोनिक गुफ्तगू का भी जिक्र किया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का सैलाब से तबाहकारियों पर नाक़दीन को जवाब। तुर्क टीवी TRT को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान में पहले भी सैलाब आए मगर ऐसी तबाही कभी नहीं हुई। 100 किलोमीटर लंबी झील बनने से मुतासरीन की बहाली इंतहाई मुश्किल काम है। चैलेंज करता हूँ, दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क भी ऐसी तबाही से नहीं निमट सकते। मुतासरीन इस आफत के लिए तैयार नहीं थे और ये भी हकीकत है तो इसके जिम्मेदार भी नहीं। सैलाब से तबाही इतनी शदीद है कि मिलने वाली इमदाद समंदर में कतरे जैसी है। The scale of this tragedy is so immense that despite the fact that we have received aid and quite a bit of aid, it's all a drop in the ocean when it comes to the sheer scale of the tragedy. Frankly, we're used to floods. We're used to monsoons. This was nothing normal. We've had historic floods, the biggest in our history, in 2011, in 2010. But what do you do when 100-kilometer lake forms in the middle of your country? What do you do when flooding comes from the skies? So there's no way that the government could feel this body of water is still descending towards my ocean. I challenge any country, the most powerful countries on earth. I challenge America that if a 100-kilometer lake formed here in New York and suddenly the entire population of New York was homeless, hungry, in need of medicine, would the strongest, most powerful, richest country on earth afford to feed them immediately, house them immediately? So the problem is that those that are suffering as a result of these cataclysmic climate events, sure, are not prepared for such a scale of the disaster, but they're also not the ones who contributed to it, because we're still in the rescue and relief phase, because as I mentioned, this water is descending to the oceans, and then going forward, because of the stagnant water and the sheer scale of it, there's the potential of an epidemic of waterborne diseases. So we've got a climate catastrophe, a health catastrophe, as you mentioned, the crops of 4 million acres of standing crop destroyed, and the coming crop is wheat, and if we miss that, which is what it's looking like, that means a serious food security issue. And to top it all off, we just entered into the IMF agreement after very difficult negotiations, and we were looking forward to a sigh of economic relief. But unfortunately, all the estimates, all the figures, all the numbers that deal is based on is also washed away from the floods. So on top of all of this, we're potentially staring at incredibly difficult economic times. It's a global, this sort of catastrophe is a result of global actions, and its solution has to be as well. बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, तहरीकी अदम एतमाद के पार्लिमानी तरीके से इमरान खान की अक्सरियत खत्म हुई थी। अगर वो आज़ाद और शफाफ इलेक्शन जीत कर आएगा तो हम उनका खैर मकदम करेंगे। हमने इंतखाबी धांधली से बनी उनकी हुकूमत की मुखालफत की थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने यह बात तुर्क टीवी को इंटरव्यू में कही। And Mr. Khan's ouster was the first democratic constitutional ouster of any prime minister in the country's history. Before this, prime ministers have been hanged, they've been exiled, there's been actual coups, so we don't throw the term coup around so loosely. We've had military coups, we've had judicial coups. This time, we had a parliamentary procedure of a vote of no confidence that resulted in Mr. Khan losing his majority. If
he comes back through a free and fair election, we'd welcome it. We opposed him coming through a compromised, rigged election. We believe in democracy and he has absolute right to take part in the process. वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं बारिश और सैलाब मुतासरीन को उनके घरों में रिहाइशें फराहम करना तरजीह है। कराची के 5 अजला में कायम 32 रिलीफ कैंपों में 16,104 मुतासरीन मौजूद हैं, जिन्हें पका खाना, पीने का साफ पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत सिंध मुतासरीन के घरों की असर नौ तामीर में उनकी मदद करेगी। जिला गरबी के 6 कैंपों में 3,812 मुतासरीन को ठहराया गया है। जिला शर्की में कायम 15 कैंपों में 8,476, जिला कोरंगी के 1 कैंप में 408 और जिला कोरंगी में कायम कैंप में 408 मुतासरीन रिहाइश पजीर हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं बारिश और सैलाब मुतासरीन को उनके घरों में रिहाइश फराहम करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची के 5 अजला में कायम 32 रिलीफ कैंपों में 16,104 मुतासरीन मौजूद हैं, जिन्हें पका खाना, पीने का साफ पानी, अद्वियात और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। हुकूमत सिंध मुतासरीन के घरों की असर नौ तामीर में उनकी मदद करेगी। लाड़काना में कबू सईद का इलाका गोड़ शाह वसाया भी सैलाब की जद में है। मुतासरीन ने कबू सईद रोड पर डेरे लगा लिए हैं। मुतासरीन खुराक, अद्वियात, खैमे और मच्छरदानियां ना मिलने पर शिकवा कर रहे हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हसनैन औलख। जी, कुबो सईद के इलाके गोट शाह वसाया में मौजूद हैं और यहाँ पर सैलाब के बाद के जो मनाज़र हैं, यहाँ पर वो पानी की नज़र है और यहाँ के जो मकी हैं उनको बदतरीन मुश्किलात का सामना है। वो यहाँ से उठकर रोड के ऊपर आकर बैठे हैं और उन मकीनों का ये कहना है कि ताहाल उनको इमदादी कार्रवाइयों के सिलसिले में ना ही तो उनको राशन मिल सका है, ना ही इमदादी कैंप जो कायम किए जाते हैं वो यहाँ पर कायम हो सके हैं। टेंट भी प्रोवाइड नहीं किए गए, अद्वियात भी नहीं दी गई। तो उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा, आप गोट से उठकर आप रोड पर आकर बैठे हैं, सर जी। आप को कुछ मिला या फिर आपके पास सैलाब के बाद क्या बचा है? कुछ नहीं बता, हमारा जो गांव भी डूब गया, फसलें भी गए, हम रोड पर बैठे हैं, टेंट नहीं मिला। ये बरसात में ऐसे बच्चे बैठे थे, कुछ न मिला। हम तबाह हैं, तंग हैं, बर्बाद हैं। कोई वसीला नहीं है जो हमें कोई मदद करने वाला। जी बिल्कुल, इनके जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि वो भूखे हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। इमदादी कार्रवाई के सिलसिले में ना ही खेमे मिले हैं, ना मच्छरदानियाँ, ना ही अद्वियात यहाँ पर उनको मैसर आई हैं। कुछ उनके हाल पर भी रहम किया जाए, कुछ राशन, कुछ नवाले जो उनके बच्चे खा सकें। कराची के सैलाब मुतासरा कैंप से सैलाब मुतासरीन की वापसी शुरू हो चुकी है। अब तक 2000 से ज़ायद मुतासरीन अपने आबाई इलाकों में चले गए, जबकि मजीद लोग वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। कराची के सैलाब मुतासरा कैंपों से सैलाब मुतासरीन की वापसी शुरू हो चुकी है। अब तक 2000 से ज़ायद मुतासरीन अपने आबाई इलाकों में चले गए हैं। मजीद लोग वापस जाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। कराची के सैलाब मुतासरा कैंपों से सैलाब मुतासरीन की वापसी शुरू हो गई है। बात कर लेते हैं, आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद है। आजिज, बताइएगा। जी देखिए, कराची में 41 सैलाब मुतासरीन के कैंप हैं और अब 32 कैंप रह गए हैं, जिसमें 2 अजला में तो ऐसे कैंप कायम थे जो ख़त्म कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ कैंपों के लोगों को एडजस्ट कर दिया गया है। इस वक्त 32 कैंप हैं, जिसका बाकायदा आज यहाँ सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की तरफ से ऐलान भी किया गया। लेकिन इस वक्त मैं एक सैलाब मुतासर कैंप पर हूँ। लोगों की वापसी का अमल जारी है। यहाँ भी इस वक्त कोई 20-25 ख़ानदान ऐसे हैं जिनका कंबर के इलाके वारह से ताल्लुक़ है, वो तैयार हैं कि उनको वापस जाना है। बहुत सारे लोग दीगर कैंपों में मौजूद हैं जो जिन इलाकों से पानी उतर चुका है या जो इलाके अब ज़ेरे आफ़ नहीं है, वहाँ लोग वापस जाना चाहते हैं। लेकिन एक और मसला है इनके साथ, अगर ये वापस भी जाना चाह रहे हैं तो उनको फिर किराया कौन अदा करेगा? फिर ये वहाँ कश्तियों के ज़रिए अपने आबाई इलाकों में जाते हैं, वहाँ पहुँचना भी एक मसला है। तो यहाँ
यहाँ पे जो कंबर के इलाके के लोग मुझे बता रहे थे कि 80-90 हज़ार बस का किराया है। अगर इंतज़ामिया या हुकूमत बसों और कश्तियों का किराया दे तो वो अपने इलाकों में वापस जाना चाह रहे हैं। वैसे ये इस वक्त यहाँ पे 16,000 लोग रह गए हैं कराची में, जो 18,000 से ज़ायद थे। सूबाई हुकूमत के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जब 41 कैंप थे तो 18,000 से ज़ायद लोग थे। इस वक्त उनकी तादाद 16,000 रह गई है। यहाँ पे एक टेंट सिटी भी कायम किया जा रहा है। कल से टेंट सिटी में लोगों की मुंतकिली शुरू हो जाएगी। जी ठीक है आजिज़, बहुत शुक्रिया आपका। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटियों से निकाले गए मुलाजमीन बनी गाला में एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने इमरान खान से मुतालबा किया कि हमारे साथ हुई नाइंसाफ़ी का नोटिस लें, वरना हम नौकरियों पर बहाल होने तक धरना जारी रखेंगे। बात कर लेते हैं किफ़ायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। किफ़ायत बताइएगा। जी, खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जो जामियात हैं वहाँ से निकाले गए मुलाजमीन जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं और इस्लामाबाद में आकर जो है बनी गाला में एहतजाज कर रहे हैं। PTI की हुकूमत जो कि खैबर पख्तूनख्वा में है और इमरान खान के खिलाफ भी जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त जो है ये मुजाहिरीन इमरान खान चौक बनी गाला में मौजूद हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। इनके क्या मुतालबात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ये लोग जो निकाले गए। इनसे पूछते हैं कि क्या वजह है कि आपको निकाला गया और आप क्या कहते हैं। मैं जॉब यूनिवर्सिटी से आया हूँ और मैं तकरीबन 2017 से वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मैं एक PhD डॉक्टर हूँ और मैंने बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बाहर की मिस की हुई हैं। मैं चाइना से, इवन कोरिया से और US की मैंने पोस्ट डॉक मिस की हुई है और मेरे पास US पेटेंट भी है। तो मैं यूनिवर्सिटी को तकरीबन 10 साल मैंने उसको खिदमत दे दी है, लेकिन अभी वो मुझे निकाल रहे हैं। तो हम CM से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें बहाल करें, हमें परमानेंट जॉब दे दें। अगर नहीं दे रहे हैं तो हम बनी गाला की तरफ मार्च करेंगे और वहाँ पर हम धरना देंगे। और तकरीबन हम यहाँ से बग़ैर परमानेंट ऑर्डर के हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हमें रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से, CM साहब से कि हमें परमानेंट करें। अगर हम नई मुतालबात नहीं मानते हैं तो हम CM इमरान खान के घर की तरफ हम जाएंगे। बिल्कुल, ये काबिल लोग हैं, ये बता रहे हैं ये PhD हैं और 10 साल तक जो है वो खिदमत दी हैं इन्होंने मुख्तलिफ जामियात में खैबर पख्तूनख्वा में, और ये कहते हैं कि हमारा राइट है। जाहिर सी बात है इनका राइट भी है और ये काबिल लोग हैं और अगर इनकी एक्सटेंड करना इनका जो है वो मुतालबा है। और ये कहते हैं कि अगर इनका मुतालबा जो है वो मंजूर नहीं किया गया तो ये इमरान खान के घर के बाहर भी जाएंगे और वहाँ पर भी जो है वो एहतजाज करेंगे। और ठीक है, बहुत शुक्रिया।